أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salma radiallahu anha, the wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narrated that he, Prophet sallallahu alaihi wasallam, said, a dispute will occur following the death of a Khalifa, and a man from Medina will flee to Mecca. Some of the people of Mecca will come to him and will bring him out against his will, and will swear allegiance to him. Between the corner, that is Blackstone, and Maqam Ibrahim, ya Maqam, an army will be sent against him from Syria, which will be swallowed by the earth in Al Baida, between Mecca and Medina. When the people see that the devoted worshippers from Syria and the best people from Iraq will come to him and swear allegiance to him. Isko Imam Mahdi. Then a man will rise from Quraysh, whose maternal uncles are from Kalb. He will send an army against the Mahdi, and the Mahdi's followers will prevail over them. The that defeated army will be the force of Qalb. The real losers will be the one who is not present with the wealth of Qalb is divided, when the wealth of Qalb is divided. He, Mahdi, will divide the wealth and rule the people in accordance with the Sunnah of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam will become established on earth and he will remain for 7 years. Then he will die and the Muslims will offer the funeral prayer for him. According to another narration, the length is of his rule will be 9 years. तो हमने पहले ही पढ़ा था कि इमाम मेहदी जब आएंगे तो उनकी जो हुकूमत रहेगी वो 9 साल तक रहेगी. तो ये बताया जा रहा है कि एक बहुत ज़बरदस्त लड़ाई उठेगी, dispute will occur following the death. और इससे क्या होगा, जितने खलीफा उस वक्त के होंगे उनकी यानी उनकी मौत आएगी. बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सऊदी या इस इलाके में अरब की ज़मीन पे बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है. उस लड़ाई में क्या होगी, जो खलीफा होंगे उनकी मौत होगी. और अ मैन फ्रॉम मदीना विल फ्ली टू मक्का. उनमें से एक आदमी होगा, एक फ़र्द होंगे जो मदीना से मक्का मुकर्रमा चले जाएँगे. सम ऑफ द पीपल ऑफ मक्का विल कम टू हिम. कुछ लोग मक्का के बाशिंदे आएँगे उस फ़र्द के पास जो मदीना से मक्का आए होंगे. एंड विल ब्रिंग हिम आउट अगेंस्ट हिज विल. और उनको मतलब ज़बरदस्ती बाहर लाया जाएगा. एंड विल स्वेयर एलिजेंस टू हिम. और वो उनसे क्या कहेंगे, उनको बैयत देंगे. बिटवीन द कॉर्नर, कहाँ पे, हज़रत अस्वद और मकाम इब्राहिम के पास. An army will be sent against him from Syria. उनके खिलाफ जो है सीरिया से एक जो है फौज भेजी जाएगी, जिसको which will be swallowed by the earth in Al-Baida. अल-बैदा का जो इलाका है, जो कहाँ, मक्का मदीना के दरमियान में है, वहाँ पे जब ये फौज आके टिकेगी तो ज़मीन इनको निगल लेगी. When the people see that, जब लोग इसको देखेंगे कि उनके साथ क्या हुआ है, the devoted worshippers from Syria and the best people from the Iraq will come to him and swear allegiance to him. इसके बाद लोग आएंगे और उनको बैयत देंगे. कहाँ से, सीरिया और जो है इराक के इलाके से. Then the man will rise from Quraysh, whose maternal uncles from Kalb. He will send an army against Mahdi. फिर इमाम मेहदी के खिलाफ जो है फौज भेजी जाएगी, जो कुरैश के लोग करेंगे. And Imam Mahdi's followers will prevail. मगर इमाम मेहदी के जो भी उनके जो ताबेदार होंगे, जो भी उनके फॉलो करने वाले होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो जीत जाएंगे. किसके ऊपर, अपने दुश्मनों के ऊपर. That defeated army will be the force of Qalb. जो लोग हार जाएंगे वो कल्ब की तरफ से होंगे. The real losers will be the one who is not present. सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, जो हारे हुए लोग वो होंगे जो इस माल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. किस माल में, जो भी बूटी निकलेगी कल्ब की इस जंग से. फिर इमाम मेहदी क्या करेंगे, इमाम मेहदी उन जो भी माल होगा, माल गनीमत, उसका बंटवारा करेंगे. और 7 से 9 साल तक अमन और सुकून से क्या होगी, उनके एक जो है उनकी हुकूमत रहेगी बिइज़्निल्लाह. अल-बैदा क्या है, बिटवीन मक्का एंड मदीना, रेफर्स टू अ डेज़र्ट बिटवीन मक्का एंड मदीना. तो ये एक रेगिस्तान है. कहाँ पे, ये रेगिस्तान आपका है मक्का और मदीना के दरमियान. Whose maternal uncles are from Kalb, that is the tribe of Kalb, which is one of the well-known tribes of Arabs. तो ये एक कबीला है, एक कुंबा है कल्ब के नाम से. और उनके जो चचा या जो भी होंगे या मामू,
maternal, जो मामू जो भी होंगे वो इस कबीले से होंगे, अरबी कबीले से. Will prevail over them means they will defeat them and will be victorious over them. मगर जो इमाम मेहदी की जो फौज होगी वो अल्लाह ताला उनको फतह देंगे. इस बिइज़्निल्लाह इस्लाम will become established on earth, और अल्लाह जल्ल जलाल की शरीयत, अल्लाह जल्ल जलाल की सुन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वो जो है सरजमीन पे जो है क्या की जाएगी, उसी की ताबेदारी की जाएगी बिइज़्निल्लाह. The strength of Islam is likened to the image of a camel which has sat on the ground and laid its neck on it as well. तो ताकत क्या है? जैसे यहाँ तस्वीर दिखाई गई है, कोई इसको उठा सकता है, कोई इसको खींच सकता है? कोई नहीं खींच सकता है. क्योंकि इसने अपना पूरा वजन जमीन पे जो डाल दिया है पूरे पूरे तौर से आराम करने के तरीके से. तो यही दिखाया जाए कि इस तरीके से अभी ये देखिए जो खड़ी वाली जो ऊँट ऊँट है, इसको लेके जाया जा सकता है क्योंकि अपने पैरों तले पे है ये, इसको खींचा जा सकता है. मगर इसको खींचना आसान है? नहीं, क्योंकि उसकी पूरी जो वज़न क्या आ गई है, ज़मीन पे आके बैठ गई है. तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीन इस्लाम को मज़बूत करेंगे बिइज़्निल्लाह, बिइज़्निल्लाह. Islam will become established on earth, literally will lay its neck on the ground. The strength of Islam is likened to the image of a camel which has sat on the ground and laid its neck on it as well. तो जैसे अभी तस्वीर देख रही हैं, जिस तरीके से ये ऊँट या ऊँटनी बैठ गई है, उसके पूरा वज़न ज़मीन पे आन पड़ा है, उस तरीके से दीन इस्लाम जो है मज़बूती से कायम होगा बिइज़्निल्लाह. The hadiths concerning the Mahdi, Imam Mahdi, are proven and there is no doubt regarding them. They were narrated by 30 companions and reported by the leading scholars of hadith in the books of Sunnah and Musnad. They were quoted as evidenced by the scholars to such an extent that belief in the appearance of the Mahdi has become a consensus in the beliefs of Ahlul Sunnah al Jama'ah. Many scholars cited that the hadiths regarding the Mahdi are mutawatir as related by Imam al-Safarini, al-Shawqani, and Muhammad Siddiq Khan, rahimahullah ta'ala, have rahmah on them, mercy on them. A brief look at some of those who claim to be the Mahdi. अब कितने लोग आन पड़े हैं जो झूठी दावा दे रहे हैं किसका, इमाम महदी के होने का. तो उसमें से जो है studying history, the periods of dispute and injustice that the Muslims have gone through, and the spread of injustice caused by the people in authority, we find that some men have appeared who claim to be Mahdi, and some people believe them. Some of these people are the Rafidis, claim that they were the waiting of the Mahdi, who is the last of the 12 Imams. According to them, his name is Muhammad ibn al-Hasan al-Ashqari. They believe that he is one of the descendants of Hussein radiallahu anhu and not the descendant of Hassan radiallahu anhu. तो क्या बताया जा रहा है कि कितने लोग आए थे जिन्होंने अपने आप को मेहदी करार किया, मेहदी होने का दावा दिया, ठीक है? तो ये झूठे दावे थे. तो उनमें से पहला दावा किसका दिया जा रहा है? राफिदीस का दिया जा रहा है. इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि वो जो जिनका इंतज़ार किया था वो मेहदी हैं और वो इमाम हुसैन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हुमा के जो है नस्ल से हैं. Not the descendants of Hassan radiallahu anhu. They believe that he entered the tunnel of Samurra more than 1,000 years ago in the year of 260 AH after Hijri. तो इनके दावे हैं जो गलत हैं. When he entered the tunnel, he was 5 years old and he has been living in this tunnel since that time. He has not died and he will emerge at the end of time. तो उनका मानना है कि ये कोई सुरंग थी जहाँ पे ये आदमी जाके बैठ गए थे और ये टनल ऑफ समूरा जो इसके अंदर हैं और इसी के अंदर से फिर वो बाहर निकल के आएंगे. अल्लाह आलम. They believe that he is present in all the regions and knows about people's situation, but he is hidden from the sight and cannot be seen. तो कहा जाता है कि वो जो बंदे हैं मोहम्मद जिनकी बात हो रही है तो वो इसके अंदर हैं और अब उनको हर चीज का इल्म है नाउज़ुबिल्लाह, मगर वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं. These words of theirs are from their foolishness, which has no evidence or proof. ये उनकी बेवकूफ़ी है जो बोल रहे हैं वो, और any rational argument. ये इसके पीछे कोई सही हकीकी बात नहीं है, ये सिर्फ अपने मन की बात जो है
मन की जो है बुनी हुई बातों को कह रहे हैं. It is a contrary to the law of Allah Azza wa Jal concerning people. The prophets and messengers of Allah subhanahu wa ta'ala are the best of people before Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah ta'ala caused them to die. How can Allah subhanahu wa ta'ala cause his prophets and messengers to die, yet the Rafidi Mahdi remains alive for 1,000 years as they claim? तो क्या कहा जा रहा है कि इनकी ये जो बातें कह रहे हैं, इनके पीछे कोई इनके पीछे कोई बात नहीं है, यानी कोई साहिब अक्ल या कोई अक्ल वाली बात नहीं है, सिर्फ़ बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, फ़ूलिशनेस है इनकी। और जो ये कह रहे हैं कि राफ़िदी महदी जो हैं, जो अंदर बैठ इस समुराय के सुरंग में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है भई कि अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम जिनको कहा गया 50 में 50 कम जिए, यानी 950 साल जिए। तो बड़े-बड़े अंबियाओं की उलुल अज़म का इंतकाल हो गया है, मगर ये साहिब जो हैं राफ़िदी महदी, ये अभी तक बैठे हुए हैं इसके अंदर 1000 साल से ऊपर। तो ये क्या है? ये एक ऐसी बात है जिसके पीछे ना कोई अक्ल है, ना कोई साहिब अक्ल इस बात को मान सकता है। Additional to what is the reason for his absence and hiding for such a long period of time when he is still alive, why doesn't he emerge and enjoy what is good and forbid what is evil when the ummah today is in the greatest need of it? यहाँ पे आज हमारी उम्मत को सख्त ज़रूरत है। इलाहाबाद में क्या हो रहा है, प्रयागराज में क्या हो रहा है, रांची में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हालात हो रहे हैं, लीबिया में, सीरिया में, इराक में, बगदाद में क्या सूरत-ए-हाल है, और ये साहब जो है इस सुरंग में बैठे हुए हैं। कितनी बेवकूफ़ी की बात की जा रही है और कैसे लोग इस बात को मान भी रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु आलम, अल्लाहु मुस्तआन। So Ibn Kathir rahimullah said concerning the Mahdi, Muhammad ibn Abdullah mentioned in the hadith, and he, meaning the Mahdi of Ahlul As-Sunnah, will appear from the east, not from the tunnel of Samura. तो Muhammad sallallahu alaihi wasallam का ये कहना था, और जाहिर सी बात है उनकी बात हमारे लिए ज़्यादा मजबूत है कि उन इमाम महदी कहाँ से आएंगे? ईस्ट की तरफ से आएंगे, मशरिक से आएंगे वो, not from the tunnel of Samura. He इस जगह से नहीं आने वाले, where the ignorant Rafidis claim he is presently and awaits his emergence towards the end of the time. और लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर ज़मान में वो बंदा यहाँ से निकल के बाहर आएगा। ये राफिदीस का जो है, उनका जो है फ़ुज़ूल का, बेअक्ल उनका ये एक दावा है। और हो जाएगा, वो ये लोग कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। अगर जो इनके जो दावेदार जो होना है, मतलब जो भी ये जो दावे दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ये लोग निकालेंगे बाद में फ़ितने की शक्ल में। मगर हमें ये अक्ल रखना है कि ये सब बातें क्या हैं, गलत हैं। इमाम मेहदी का कहाँ से आना होगा? इमाम मेहदी जो है, जैसे बताया जा रहा है कि मक्का मुकर्रमा में वो जो है उनको बैयत दी जाएगी, और फिर जो उनकी फ़ौज तैयार होगी, और फिर उनका 7 से 9 साल तक उनकी हुकूमत रहेगी। और ये कब रहेगी? ये जब दज्जाल का वक़्त बहुत करीब हो जाएगा आने का, और ये आखिर ज़मान में होने वाला है ये। तो अल्लाहु आलम इन तमाम बातों की, कब होना है, कैसे होना है, ये अल्लाह ताला को इल्म है। हाँ, हमें कुछ निशानियाँ, कुछ पेशन गोई मिल रही है, कैसे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदीसों से बिइज़्निल्लाह। तो हमें इन पे यकीन रखना है, ना कि उन लोगों के ऊपर जो बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं। अल्लाह मुस्तआन। This is a kind of delirium and a great deal of misguidance. तो ये जो बात किया जा रहा है, ये एक ऐसी बात है जो इंसानों को जो है और ज़्यादा जो है गुम बेहोश करने वाला, या सरसाम, यानी डिलीरियम का मतलब ये है कि जैसे कि जब इंसान बेहोशी के हाल में चला जाता है, हो यानी होश हवा से बात नहीं करता है। तो अगर मुझसे कोई कहती कि सुरंग के अंदर आदमी बैठा हुआ है, वो 1000 साल या आखिर ज़मान में निकल के आएगा, तो मैंने तो कहीं से मानना ही नहीं है इस बात को। इस सुरंग के अंदर कहाँ बैठा हुआ है, क्या खा पी रहा है, कैसे जी रहा है। हम लोग जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंज़ा हो रहा है, सीज़नल फ्लू हो रहा है, फला-ढिमका हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, खाँसी, डॉक्टर, चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कान के अंदर बैठा हुआ है, जिसको किसी किसी ने अब तक देखा नहीं है। तो ये अजीब मदहोशी, बेहोशी वाली बातें हैं ये। So this is a kind of delirium and a great deal of misguidance from shaitan. Of course, yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. As there is no evidence or proof for it either from the Quran, the Sunnah or the rational thought. तो कोई भी साहिब अक्ल इस बात को नहीं मानने वाला है, और ना हमारे कुरान और सुन्नत से ये बात वाज़ेह है। There is no advantage or benefit in this idea. इस इन फ़ुज़ूल की बातों में कोई फ़ायदा नहीं है।
Abdullah ibn Sabah claimed that Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu was the awaited Mahdi. He also claimed that he would come back to this world. अच्छा, अब एक फिरका क्या कहता है? अब्दुल्ला इब्न साबा, उनका ये कहना है कि अली रदियल्लाहु अन्हु इमाम महदी थे और इमाम महदी अली रदियल्लाहु अन्हु की शक्ल में फिर से वापस आने वाले हैं। यानी खुद इमाम अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु जो है इमाम महदी बन के आएंगे। बिल्कुल बेबुनियाद बात। Al-Mukhtar ibn Ubaid al-Thaqafi claimed that Muhammad ibn al-Hanafiya, who died in 81 AH, was awaited Mahdi. लीजिए, अब अबू al-Hanafiya रहimullah को क्या कह दिया कि ये क्या थे? इमाम महदी थे। Muhammad ibn al-Hanafiya was Muhammad ibn Ali Abi Talib radiyallahu anhu, who is called as Ibn al-Hanafiya after his mother Khawlah bin Jafar, who was from the tribe of Banu Hanifa. तो अब यहाँ पे बात आ गई, यानी इनको इमाम महदी कह दिया गया है। Now the Kaisani sect, अब एक और फिरका जिसका क्या नाम है Kaisani, उनका कहना है कि who were the followers of Kaisan, the freed slave of Ali radiallahu anhu, were a group of Shia who believed that their Imam Muhammad ibn Hanafiya encompassed all knowledge, na'uzubillah, and therefore agreed that the entire religion was obedience to only one man. This led them to misinterpret the pillars of Islam to refer to some men who they stopped practicing them. They claim that Abdullah ibn Muawiyah and Abdullah ibn Jafar ibn Abi Talib al-Hashimi al-Qurayshi was the Mahdi. तो अब यहाँ पे इनको कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि इमाम अब्दुल्ला इब्न मुआविया वो जो है इमाम महदी थे, तो ये मोहम्मद इब्न हनफिया ये इमाम महदी थे। ये किसका नाम, कौन थे इसके पीछे शियाओं का हाथ था। पांचवा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न हसन इब्न Ali ibn Abi Talib, may Allah Ta'ala be pleased with them, who was known as Zulnafs al-Zakiyah, was a man who fasted and prayed voluntary night prayer at a great deal. एक बंदे थे जो बहुत ज़्यादा परहेजगार, तहज्जुद गुजार और रोज़ेदार थे. During his own era, some people were confused about him and thought that he was the Imam Mahdi. तो उनके दौर में एक यानी इस वक्त पे एक बंदे थे जो बहुत ही परहेजगार मुत्तकी थे या उनके अंदर बहुत ज़्यादा दीनदारी थी, तो उनको कह दिया गया कि भाई ये इमाम महदी हैं। तो इनके पीछे कोई हकीकी कोई बात नहीं है, इसके पीछे कोई ऐसी बुनियादी बात नहीं है जो बैकअप की जाए दीन और इस हदीस से या कुरान मजीद की बातों से। तो ये चीज़ें जो हमारे लिए मानने की नहीं है, ये बस हमें बताया जा रहा था कि हम लोग इन बातों से वाकिफ़ रहें। बिइज़्निल्लाह। So some people were confused about him and thought that he was Imam Mahdi. He had a movement and followers. He tried to put the affairs of the Muslims straight. But the Abbasids, who Ibn Abbas radiallahu anhu ke jo followers jo aage aaye, the Abbasids who were the rulers at that time fought against him with an army of 10,000 fighters and put an end to this movement. Zulnaf al-Zakiyah had rebelled against Abbasid Khalifa al-Mansur, during whose reign oppression and injustice were widespread. तो ये बताया जा रहा है कि इस दौर में भी जो है कोई आए थे जिन्होंने क्या कहा था कि वो इमाम महदी है, मगर उनको भी हटा दिया, यानी उनको जो है इस चीज़ से रोक दिया गया अब इस झूठे दावे से. Another individual who claimed to be the Mahdi was Ubaidullah ibn Maymun al-Qaddah, whose grandfather was a Jew, एक यहूदी आदमी जिसके दादा यहूदी थे. He was the leader of the Qaramita, who killed many Muslims and sold the black stone in 317 after Hijri. They were worse disbelievers than the Jews and Christians. तो अब ये बंदा था, इसने भी अपने आप को दावा देना चाहा कि वो इमाम महदी है. ये सबसे बदतरीन लोगों में से था, यानी यहूदी और नसारों से बदतरीन काफिरों में से था ये. His children attained power and took control of Egypt. इसकी जो नस्ल जो आगे आई किसकी, उबैदुल्लाह इब्न मैमून अल-क़द्दाह की. इस आदमी की जो नस्ल आई, इन्होंने किस पे उनको काबू मिला, इनको जो है मिस्रियों के ऊपर काबू मिल गया. They took the control of Egypt, the Hijaz जो सऊदी का इलाका है, and Syria. They falsely claimed to be of Ahlul Bayt and claimed to be the descendants of Fatima radiallahu anha. Hence, they were also called the Fatimids. तो Fatimids कौन है ये बता दिया. Fatimids जो आते हैं ये इस आदमी का नाम आता है उबैदुल्लाह अल-क़द्दाह, जिन्होंने
मिस्र पे जो है बहुत ज़्यादा अपने हुकूमत को मजबूत कर लिया था। मिस्र, हिजाज और सीरिया, इन 3 इलाकों पे। They banned the Shafi'i courts and built graves and tombs. Great calamities befell the Muslim because of them. तो इन्होंने जो शाफी उनके जो कोर्ट्स होते थे जहाँ पे जजमेंट दिया जाता था, तो उसको बंद करवा के इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेइंतहा या बेहिसाब कब्रिस्तानों को और दरगाहों को बनाए गए, टोम्ब्स बनाए गए। एंड ग्रेट कैलामिटीज़, बहुत ही बड़ा फितना, बहुत ही बड़ी जो है तकलीफ टूट पड़ी थी किसके ऊपर उस दौर पे, मुसलमानों के ऊपर। द करामीता pretended to be Muslims but in fact they were heretics, far different from the other religions and sects. Their religion was a mixture of mechanism whose followers worship the fire. तो ज़ेरोस्ट्रिज्म या मेकेनिज़्म्स कौन होते हैं? ये जो आग की परस्ती करते हैं। तो बेसिकली जो करामीता जिन्होंने क्या कहा था कि ये फातिमिड्स थे, यानी फातिमा रदियल्लाहु अन्हु के नस्ल में से थे नाउज़ुबिल्लाह, ये झूठे थे और ये मुसलमान होने की दावा करते थे, यानी वो दिखावा करते थे कि वो मुसलमान हैं, मगर हकीकी तौर पे ये लोग क्या थे, ये लोग आग की परस्ती करते थे। इनके अंदर ज़ाहिरी तौर से ये मुसलमान थे, मगर ये अंदरूनी तौर से क्या थे, ये आग की परस्ती, ये पेगन्स थे। और सैबियन रिलीजन whose followers worshippers are the stars, या फिर ये सितारों की परस्ती करते थे। Ibn Kathir rahimullah said the rule of Fatimids lasted for more than 280 years. Allahu Akbar. And Ubaidullah al-Qatada claimed to be the Mahdi and built the city of अल-महदिया। तो क्या कहा गया कि जो बंदा जो था उबैदुल्लाह अल-क़द्दाह, तो यानी इन फातिमिड्स जो रहे, इनकी हुकूमत कब तक रही? 280 साल तक रही, ठीक है? 280 इयर्स। और उनमें से जो ये बंदा जो था उबैदुल्लाह अल-क़द्दाह, इसने क्या किया? इसने अपने आप को मेहदी करार किया नाउज़ुबिल्लाह, और एक शहर बनाया किस नाम पे? अल-महदिया के नाम पे। Another individual who claimed to be the Mahdi was Muhammad ibn Abdullah al-Barbari, who is known as Ibn Tumart. He appeared in the year of 514 AH and claimed that he was an Alawi, that is descendant from Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, and fabricated a lineage going back to Al-Hasan ibn Ali radiallahu anhu. तो ये जो थे, इन्होंने क्या किया, इस बंदे ने, इसने यहाँ तक झूठ बोला कि अपनी पूरी नस्ब बना दी थी उसने, झूठी। क्या इसकी पूरी नस्ल कहाँ तक जाती है इस आदमी की? हसन रदियल्लाहु अन्हु तक। तो ये भी क्या था, एक झूठा दावा था। He gained power by oppressive and unjust means. इसने जो ताकत हासिल की कैसे? जुल्म और सितम से। And he employed a number of tricks by which he deceived the people. उसने बेपनाह धोखेबाजी, गद्दारी, फरेबी हरकतों से क्या किया? लोगों को जो है धोखा दिया। Trying to prove that he had some extraordinary feats or miracles. इसने ये दावा किया कि इसके पास कुछ मौजूज़े, कुछ बहुत ही करामत करने वाली चीज़ें हैं, नाउज़ुबिल्लाह। One of his tricks was to hide men in graves. He would then come with a group of people showing them a miracle. कुछ उसकी ये इसमें एक ये भी हथकंडा था कि वो क्या करता, आदमियों को कब्रों में छुपवा देता, ज़िंदा आदमी को कब्र के अंदर छुपा देता। या hide men in graves. He would then come with a group of people showing them a miracle. और फिर वो आकर के उनको मौजूज़ा दिखाता कि भाई मरा हुआ आदमी को उसने जिंदा कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये इस किस्म के इसने, he would shout, dead ones respond to my call, and they would reply, you are the infallible Mahdi, नाउज़ुबिल्लाह। तो वो आदमी जो था, कि इसका क्या नाम है, जिसने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल बरबारी का जो नाम जिसका था, वो क्या करता, कब्रों के अंदर जिंदा आदमी को जलवा देता और फिर लोगों के साथ आके ये दिखाता कि उसके पास कुछ करामत थी। तो वो क्या कहता, आके कब्र में कहता कि ए मरे हुए जवाब दे। तो जब वो जवाब क्या देते कि आप जो है आप मेहदी हैं, मतलब आप ही बहुत ही, मतलब आप बहुत ही बड़े, नाउज़ुबिल्लाह, मेहदी करके, एंड सो ऑन, इसी किस्म के काम करता। As he would be afraid to them telling others about the trick, so he would destroy the graves with them in it, burying them alive. तो क्योंकि उसको अब इस आदमी को ये बर्बारी को ये डर लगता कि इसकी कोई बर्बादी ना हो जाए, तो वो क्या करता, वो उन्हीं लोगों को कब्र में ऐसे ही जो है चुनवा देता, यानी उसी में ही उनको करवा के मरवा देता था, ताकि वो लोग ज़िंदा ना रहें और ज़िंदा रह के उसकी उस बात को जो है खोल ना सके, उसकी इस गलत, यानी उसकी इस गलत चीज़ को खोले ना ये।
8वें नंबर पे कौन है? Another individual who claimed to be the Mahdi was Muhammad Ahmad ibn Abdullah al-Sudani, Sudan ke, who was a Sufi. He ruled over Sudan and was famous for his asceticism. He claimed to be the Mahdi when he was 38 years old, and the leaders and the scholars of tribes supported him. तो क्या कहा जा रहा है कि ये एक आदमी सुडान का था जिसने क्या किया, जिसने तकरीबन जब वो 38 इयर्स का था तो उसने क्या किया, उसने जो है दावा दिया कि वो क्या है, वो इमाम मेहदी है। तो ये आदमी बहुत मशहूर था, इसने सूडान पे हुकूमत की एंड वाज फेमस फॉर हिज एसेटिज्म, यानी अपने परहेजगारी के लिए बहुत ही माना हुआ आदमी था। कौन? मोहम्मद अहमद इब्न अब्दुल्लाह अल सुडानी। तो ये क्या था, ये इसने सूडान पे हुकूमत की और ये बहुत ज़्यादा माना जाता था अपने परहेजगारी के लिए। ही क्लेम टू बी मेहदी व्हेन ही वाज 38, और जब ये 38 इयर्स का था, 30 पे 8 साल का, तो उसने क्या दावा दिया? इसने दावा दिया इमाम मेहदी होने का, नाउज़ुबिल्लाह। एंड द लीडर्स एंड द स्कॉलर्स ऑफ द ट्राइब सपोर्टेड हिम, और वहाँ के जो इमाम थे, वहाँ के जो जो फुक़हा जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस आदमी का साथ दिया इस झूठे काम के लिए, इस झूठे दावे के लिए। तो जो भी तालिब इल्म थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस आदमी का साथ दिया। ही क्लेम्ड दैट anyone who doubted that he was the Mahdi becomes a disbeliever in Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger, and other nonsensical claims. तो इसने क्या कहा, इस आदमी ने, सुडानी ने, कि जो कोई भी कहेगा कि वो इमाम मेहदी नहीं है, तो इसका मतलब वो काफ़िर है। किस चीज़ में कुफ़्र कर रहा है? अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे कुफ़्र किया जा रहा है, और ऐसी झूठी गलत बातें वो फैला रहा था। Even though he achieved some success fighting against the British Christians, however, reality proved that he was not the Mahdi promised in the Hadith, rather he was one of the pretenders. तो क्या बात थी कि ये जो जगह इस आदमी ने, इसके हुकूमत के वक़्त में इसने कुछ फ़ायदे ज़रूर किए, जैसे कि इसने जो है कुछ जगहों पे फ़तह, या जो ब्रिटिश जो लोग थे क्रिश्चियंस, उनके ऊपर उसका फ़ायदा हुआ, मगर फिर भी ये एक झूठा दावेदार आदमी था, ये झूठे दावे कर रहा था ये। Another individual who claimed to be the Mahdi was Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani, who appeared in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. It was said that he saw a dream which he interpreted as him being the awaited Mahdi. Some people swore allegiance to him and they fortified themselves in Masjid al-Haram in 1400 AH. An event which is known as Fitnatul Haram, and which ended with him being killed. तो एक आदमी था मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहतानी, कहतानी कबीला है यहाँ का, और ये आदमी रियाद से आया। उसने क्या किया, उसने ये दावा दिया कि वो इमाम मेहदी है, और मस्जिद हरम में किसी किस्म का फितना हुआ था, जिसको क्या कहा गया, फितनतुल हरम कहा गया, और इसी मामले को लेकर के, इन्हीं सब बातों को लेकर के उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। ही वाज हिम बी किल्ड, उसको ख़त्म कर दिया गया। किसको? जो ये आदमी जिसने सऊदी होने के नाते इमाम मेहदी होने का दावा किया था। इंशाअल्लाह हम आगे इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, गाइडलाइंस ऑन डीलिंग विद दोज़ हू क्लेम टू बी मेहदी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज जाना कि ये तकरीबन 9 लोग हैं जिनका वाक़या पूरी तौर से, खुली तौर से बयान किया जाए, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा किया, मगर हकीकी तौर पे ये क्या थे, ये सब सिर्फ़ एक झूठा दावा करने वाले थे, सब एक मुद्दई, यानी झूठी बात कर रहे थे, इनकी कोई हकीकी, कोई उनकी बुनियाद नहीं थी। अल्लाह ताला हमारी हिफ़ाज़त करे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबि जहन्नम व फ़ितनतिल महया वल ममाती व अऊज़ु बिका मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। हमारे पास ये प्यारी सी दुआ है, इस दुआ को हम कसरत से मांगा करें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर किस्म के जो है फ़ितनों से हमारी हिफ़ाज़त करें, आमीन। और इसके अलावा अल्लाह ताला से हम अपने आप को बचाने की हम जो है मुसलसल दुआ मांगते रहें कि अल्लाह ताला हर किस्म के फ़ितनों से, अल्लाह ताला हर किस्म के गलत चीज़ों से अल्लाह ताला हमारी क्या करें, हमारी हिफ़ाज़त करते रहें, आमीन। जज़ाकमुल्लाह खैरन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।